I was having one conference out that was on my first attempt in Mysore, and after that it was all screen out, continuous 7 times, and then screening and recommendation. बट उन्होंने मेरे को टाइम लिमिट बस 1 ही घंटे दिए थे। आपको पता है, 1 घंटे में इफ यू ब्रिंग इट डन। और मेरा मोबाइल भी नहीं था मेरे पास, मुझे ऑफिशियल्स का ही मोबाइल लेना था, बट वो नहीं हो पाया। 1 घंटे में तो नहीं हो पाया ऑब्वियसली, नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने मेरा नाम काट दिया, रिजेक्टेड, डॉक्यूमेंट आउट डॉक्यूमेंट आउट कर दिया। आई वाज सीइंग एवरीथिंग, मेरे सामने ही हो रहा है। पेनफुल बोलता भाई पहली बार स्क्रीन हुआ 7 अटेम्प्ट के बाद और तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। आई कांट टेल यू दैट फीलिंग की मतलब यार बहुत मुश्किल से हुआ हूँ, ऐसा मत करो यार। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, प्लीज मुझे अंदर ले लो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं शुभम का एक्सपीरियंस। शुभम recently got recommended for Indian Coast Guard Assistant Commandant, and he also got medically fit, merit in one go, and he is ready to join Indian Naval Academy. And we are going to learn about his SSB experience and his journey of reaching the academy. Okay, I welcome Shubham to this platform. How are you? Thank you so much, sir. I'm certainly doing very good right now. Yeah. Okay, so Shubham, just give your brief introduction to our audience, like your name, native place, your educational qualification, number of SSB attempts, and your upcoming like journey, or what is going on in your mind before just joining your academy. So, sir, like I'm from Devariya, Uttar Pradesh. My native is there. I've done my schooling from Army Public School, Gorakhpur, from 6th to 12th. My father is in army, so he got posted there. So luckily, I was there. He called me to come and like pursue my schooling from there. After that, like I was to be going for NDA, so but I couldn't make it to NDA. Like I gave my 5 attempts for NDA. And after that, I realized that I have to go for any certain higher education. So I was having option for DU or NIT, like NIT or IIT colleges. So I prepared for IIT. I cleared JEE Mains. I cleared JEE Advanced also. But later on, I couldn't get good colleges through JEE Advanced. So I decided to go for NIT Surat. And luckily, this was a good college for me. I enjoyed it thoroughly. I had a very good college life. I found NCC over there, and that kept me aligned with my goal to join armed forces. After that, like the 4 years, I got like I was in NCC, and after 4 years, I got placement in Pune, Vimannagar, and here I am as an analyst working in aspect ratio firm. And about my SSB attempts, as of now, before getting recommendation in Indian Coast Guard, it was 8 attempts. I was having one conference out that was on my first attempt in Mysore, and after that, it was all screen out, continuous 7 times, and then screening and recommendation. So that was Okay. quite like I was almost like one screening and then up to get recommendation. I know that, but I was waiting for that screening, and luckily the Goa was the big change for me. So again, sir, after getting recommendation, it's good feeling. It's really good feeling when your chest number is being called, and then yeah, Indian Coast Guard do a little prank with you while calling your chest number. But yeah, it was a really good feeling when your chest number is being called out and everybody is clapping for you, and then you saw your name in merit list, that name you wanted to see in that list, and I got it, and finally I would be going in like 20 days from now to the academy. Congratulations Shubham. Okay, Thank you so much, I'm sir. really happy for you. And I don't know, जब भी तुम जो भी चीज बता रहे थे ना, उससे कहीं ना कहीं से मेरा भी कनेक्शन बन रहा था। जैसे तुमने बताया कि मैंने गोरखपुर से आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है, ठीक है। मैंने गोरखपुर से ग्रेजुएशन किया है, ट्रिपल तुमने सुना होगा। Yes, yes, sir, certainly. हाँ, तो मैंने वहां से बीटेक की है, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तुमने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है। एंड यू आर ऑल्सो आर्मी ब्रेट, ठीक है। मैं भी आर्मी ब्रेट हूँ, ठीक है। तुम भी पुणे में अभी काम कर रहे हो, ठीक है। मैं मैसूर में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे तुम पहली बार कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, ठीक है। अरे, और पुणे में मैंने अपनी जेई मेंस एंड एडवांस की तैयारी की थी, ठीक है। अरे, कहीं ना कहीं से कनेक्शन हमारे बन ही रहे, ठीक है। जब तुम बता रहे थे ना, अपना इंट्रो दे रहे थे, तो मैं सोच रहा था यार ये इतना कनेक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है ना। ओके, yes, तो sir. आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, ठीक है। जब डिफेंस ब्रेड हमारे जैसे लाइक फाइनली दे सी देयर नेम इन दी मेरिट लिस्ट एंड रेडी टू जॉइन द एकेडमी, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू शुभम। Thank you, एंड sir. तुम्हारी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। यू गॉट स्क्रीनड आउट 7 टाइम्स, लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम। तुमने ये जर्नी देखी है, लाइक तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे होंगे, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो विल डिस्कस अबाउट योर जर्नी, ठीक है। सब कुछ हम लोग तुम्हारे लाइक जर्नी के बारे में जानेंगे। तुम्हारे जब स्क्रीन आउट्स हो रहे थे तब क्या चल रहा था, स्क्रीन आउट्स को ओवरकम करने के लिए तुमने क्या क्या किया,
एसएसबी की प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, वेरियस टेक्निक्स के बारे में जानेंगे कि लाइक तुमने वेरियस टेक्निक्स में कैसे अप्रोच किया, साइक को कैसे अप्रोच किया, जीटीओ एंड इंटरव्यू के बारे में जानेंगे, क्या क्वेश्चंस लाइक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुमसे पूछे गए, ठीक है, वो सारी चीजें जानेंगे। उससे पहले लाइक तुम्हें लाइक मेरे चैनल तक लाइक यू कनेक्टेड विद मी लाइक थ्रू माय यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप और टेलीग्राम, सो लाइक व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट? Sir, actually, to be honest, I was not knowing about Coast Guard. Not in detail, I was knowing Coast Guard is there, but not in detail, and there is an entry for it to become an officer in it. Hmm. So I was in Dehradun AFSB, and we were like screen out, and we were returning back to Delhi. So a friend of mine, he was discussing like a couple of them. We were discussing okay, Coast Guard का भी entry आ रहा है, उसमें भी हम apply कर सकते हैं. And उसमें सबसे unique बात ये है कि उसका screening अलग होता है. मैंने बोला यार दिस इज क्वाइट गुड राइट कि अलग से स्क्रीनिंग भी होएगा एंड तुमको टिकट का भी चिंता नहीं करना रहेगा लाइक एंड बाय द टाइम आई हैव जॉइंड कॉर्पोरेट आल्सो तो छुट्टी का भी ऑफिस में पूछना एंड ऑल. तो मैं बस यही सोचा एंड आई वाज लाइक कि ठीक है कोस्ट गार्ड के लिए अप्लाई करते हैं. सो आई अप्लाइड फॉर कोस्ट गार्ड एंड फिर वो मेरा रिटर्न निकल गया. सो रिटर्न इज नेवर इन प्रॉब्लम फॉर मी. रिटर्न मेरा हमेशा से अच्छा जाता है बिकॉज of science or maths background, you can say that. So वो हो गया. फिर I was like PSB. अच्छा PSB क्या है? फिर I saw that PSB and I selected Goa because पुणे से पास में और Goa is Goa already. So, कुछ नहीं हुआ तो घूम के ही आ जाएंगे गोवा. exactly sir. So I searched for PSB on YouTube and like there is literally very limited over there. मैं गूगल पे भी सर्च किया, मैं ज्यादा मिला नहीं, बट देन आई कम अपॉन योर यूट्यूब चैनल एंड देन आई सॉ दैट ओके आपके कपल ऑफ वीडियोस आर देयर जो पीएसबी के बारे में. अभी रिसेंटली कुछ नंबर ऑफ वीडियोस आ गए हैं बट इन दैट टाइम आई वाज सीइंग योर वीडियो. फिर पीएसबी के बारे में थोड़ा मेरे को पता चला कि हाँ इसका स्क्रीनिंग थोड़ा डिफरेंट है देन कि इसमें थोड़े अलग से लाइक जस्ट नॉट पीपी एंड डीटी एंड ओआईआर, इसके ओआईआर भी काफी डिफरेंट है. तो वो सारे बारे में पता चला एंड देन ठीक है पीएसबी मेरा क्लियर हुआ. दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी कि कैसे हुआ क्या क्या हुआ बट फिर पीएसबी खत्म हुआ. सो स्क्रीनिंग एंड देन लाइक ओके अब एफएसबी होगा. Okay, again I'm hearing for the first time कि okay final selection board is there, okay नोएडा जाना पड़ेगा. So again I was not knowing कि क्या होगा क्योंकि पहले दिन ही साइकोलॉजी टेस्ट हो जाएगा कि इंटरव्यू होगा क्या होगा कैसे रिपोर्टिंग होएगा ये मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. So I joined your Telegram channel through your YouTube channel. फिर वहां से YouTube वीडियो तो देखा ही देखा, फिर आप Telegram पे भी डालते ही रहते हो कुछ ना कुछ ऐसे कि इस एसएसबी में ये हुआ, इस बार का जो बैच गया फर्स्ट बैच उसमें क्या हुआ एंड देन आपका मैं व्हाट्सएप भी लिया और फिर आपसे मैं पूछा भी कपल ऑफ क्वेश्चन कि सर रिपोर्टिंग क्या डायरेक्ट फॉर्मल्स में करने एंड आई क्लियर्ड माय डाउट ओवर देयर. सो दैट्स हाउ like I'm connected to you knowingly or unknowingly. You helped me a lot, I will say that like yeah. Okay. ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा जो इनिशिएटिव है वो काम आ रहा है, ठीक है, और मेरे सामने रिजल्ट बैठा हुआ है, ठीक है. सो लाइक आई एम रियली हैप्पी कि चलो किस तो काम आ रहा है. ये वीडियोस मैंने जो बनाए थे अपनी जर्नी के टाइम पे श्योरली काम आ रहा है सर. आपने वो जो आप एक टैट का भी रिव्यू रखते हो राइट कि टैट में ऐसे ऐसे वीडियोस आए. सो लिटरली आई सीन योर टैट वीडियोस और उसमें ऐसा था कि देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर रिपीटिंग काइंड ऑफ. और मतलब पहले मेरे को लगता था कि डिफरेंट ही आते होंगे यार, कहां से कोई रिपीट करेगा, बट देन आई सॉ योर वन वीडियो, देन आई सॉ सेकंड में लाइक यार आ रहा है तो लेट्स प्रैक्टिस ऑन फ्रॉम द साइड एंड लिटरली आई गॉट 2 or 3 ऐसे कि जो सच्ची में मैच किए थे. उसके लिए मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा एंड आई मेड अ गुड स्टोरी आउट ऑफ दैट. सो इसके लिए भी थैंक यू सो मच. ओके, वेलकम शुभम. ठीक है, एंड शुभम अब लाइक तुम्हारी जर्नी के बारे में शुरू करते हैं. लाइक यू गेव योर फर्स्ट एनडी अटेम्प्ट इन व्हिच यू गॉट कॉन्फ्रेंस जॉब, है ना? Yes. उस ये कौन से ईयर में था तुम्हारा? Sir, it was 21 Jan 2020. ठीक है. Yes, 2019 actually. I get a bit confused. So Okay. 21 Jan 2019. So जब मैं 12th में ही था, so I was very much into कि मेरे को NDA क्लियर करना है and I was so much into NDA कि मैं 11th में NDA का एग्जाम क्लियर कर दिया था. ये होता है डेडिकेशन यार. मैं 11th में ही 12th के सारे मैथ्स पढ़ डाला था ऐसा वाला. ग्रेट That was my so and in 11th I carried that confidence कि मैंने वापस से एनडीए के लिए मैं कभी पढ़ता ही नहीं था. I used to just go and sir मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे अराउंड 500 मार्क्स हमेशा आते थे. 500 मार्क्स? Yes, ठीक है, जो टॉपर्स के आते हैं, लाइक जो ऑल इंडिया रैंक टॉप में आते हैं ना, टॉप 10 के आसपास. सर मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे लाइक देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माय शिवम एंड हिमांशु. वी यूज्ड टू गो टुगेदर ओनली टू गिव एग्जाम्स. सो हमारे सर हमारे साथ में ही आते थे, लाइक हम मेरे सिमिलर ही मार्क्स आते थे, हम लोग हमेशा 500 टाइप से स्कोर कर ही देते थे. सो थैंकफुली फॉर द मैथ्स
मैथ्स में 120 आउट ऑफ 100 तो हम कर ही देते थे से। 100 आउट ऑफ 120, दिस इज गुड यार, गुड मार्क्स। Yes. ठीक है, मतलब तुम्हारी मैथ बहुत स्ट्रांग हो गई थी। हाँ सर, मतलब 11-12 ठीक था, मतलब वो जेई मेन का असर है, कह सकते हो। ठीक है, जेई मेंस एडवांस की लाइक कोचिंग की थी कोई स्पेसिफिक? सो मैंने 11th में की थी, फिर लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि इट इज नॉट अलाइनिंग टू माय गोल, क्योंकि मेरे को तो एनडीए में जाना है। फिर पता हाँ। चला कि ये तो आईआईटी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, मतलब आईआईटी क्यों करना। सो 11th मैंने पूरा पढ़ा था, 11th आई डिड कोचिंग, बट फिर मैंने 11th में ड्रॉप कर दिया था। आई वेंट इंटायरली फॉर द एनडीए। बट ओके, तो लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट यू गेव ऑन 21st ऑफ जनवरी 2019, यस सर, अपीयरिंग इन क्लास 12th। ठीक यस है, सर, फिर उसके बाद लाइक यू गॉट स्क्रीनड आउट 7 टाइम्स। यस सर। ठीक है, पेनफुल। सो लाइक इन 2024 you finally got screened in for PSB only, यस Coast सर। Guard. Before that, like what all entries you gave, है ना, कौन कौन सी एंट्री थी, और लाइक उसकी जर्नी बताओ थोड़ा अपना, लाइक स्क्रीन आउट्स और फर्स्ट स्क्रीनिंग से लेके लास्ट स्क्रीनिंग तक। सर मेरा पहला स्क्रीनिंग तो मैसूर में था, टू एफएसबी मैसूर, एंड या वन ऑफ द रीजन फॉर एफएसबी इज पायलट। पायलट वाज द उड़ाना है। सुखोई। Su-30 MKI, हाँ। यस सर। सो ऐसा था कि जाना है इसमें, फिर पता किया, आई वाज लाइक कि ओके एनडी के थ्रू आई कैन गो इन इट। सो टू एफएसबी मैसूर वाज द फर्स्ट वन दैट आई गॉट, and I went there. Screening, I think fresher screening is easy, so Easy. I did make it. ज़्यादा hassle नहीं था. It was okay. We spoke, made a good story, गया अच्छा. And you can say that I was borderline case because मुझे बुलाने से पहले वो 30 Discussions minutes हो रहे type discussion चला था. ठीक है. Maybe अगर मैं conference में थोड़ा अच्छे से और आंसर दे पाता तो would have been somewhat other case, but okay. Anyway, life it is. So I move ahead. Conference out. First conference out is always your worst heartbreak. Yes. I was not crying, but आंसू आ रहे थे, मतलब ऐसा वाला scene अंदर अंदर ही अगर बाहर नहीं आ रहे तो अंदर आंसू आ रहे हैं, ठीक है था। ना। फिर it was fine till your parents haven't called you. It was fine कि हाँ तुम मना रहे हो, दोस्त है साथ में. Then your parents call you, then क्या हुआ बेटा? And then it start गंगा जमुना. नहीं, वो लोग तो कुछ बोलते हैं, वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। पेरेंट्स तो ये बोलते हैं कोई बेटा कोई दिक्कत हाँ, yes, नहीं है, sir, exactly. कि आ जाओ तुम घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। लेकिन हमें अंदर से फील होता है They कि were यार इनकी saying the उम्मीदें, same, but sir, एक्सपेक्टेशंस। yes, like in Mysore, मैं यूपी से, how far it is with no ticket. नो टिकट। Yes sir, I was like कि हाँ ठीक है, हो जाएगा यार, मतलब ठीक है। तो गया, फिर उसके बाद फिर आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, आई विल ट्राई नेक्स्ट। फिर इन 12th आई वाज हैज गुड स्कोर, सो टीएस भी हो ही जाता था मेरा, सो आई वेंट फॉर टीएस भोपाल। ठीक है, टीएस सडनली फ्रॉम 150 रिपोर्टिंग टू आई सॉ 400 रिपोर्टिंग एंड 17 स्क्रीनिंग। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये क्या है? बट ठीक है, इट वाज आल्सो गुड अर्न। फिर देन आई वेंट फॉर again Mysore. So Mysore again, it was like I made a good story, sir. It was literally, I'm very honest, I made a good story. Narration is the one thing that I lagged a bit, but it was good one. And again, it was repeater first time experience, and like literally nobody spoke. Everybody was speaking, but you know, actual input was nobody. And then I saw that after 15 of us, 2 are getting screened, and I'm like, oh my god. I need to prepare well right now. So again, it was NDA, and then I went for again TES and Navy Tech. There also, sir, again a brutal result. In TES, I went for Bangalore, and then in Navy Tech, I went for Kolkata. Kolkata was the newly coming one. So overall, I was going. So I was just taking one positive thing. शुभम तो इंडिया घूम रहा है। घूम ही ले भाई। इसी ना। तू जा रहा है, तू अभी 12th में है, तू इतनी सारी प्रिपरेशन कर रहा है, यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर डूइंग गुड, और ठीक है, हार्ट ब्रेक नहीं, जाना है, एक सांत्वना देनी पड़ती है ना अपने आप को। हाँ ठीक है भाई, घूम तो रहा है एटलीस्ट। जाना है तेरे को, मतलब ऐसा करके। सो फिर मैंने वापस से एनडीए दिया। सो मैंने टीएस का थोड़ा सा मेरा ऐसा हो गया कि यार अभी रिटर्न एंट्री पे फोकस करते हैं, 400 के बीच में नहीं जाऊंगा। सो एनडीए मैंने फोकस किया, एनडीए के लिए पढ़ा। सर लिटरली आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, मतलब वो शीशे के सामने देख के करना, ऐसे करना, बट यू नो दैट थिंग स्क्रीनिंग का दिमाग में आते हुए लाइक ओ माय गॉड, ऐसा वाला सीन। सो अगेन, बट इस बार मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था। आई वेंट फॉर बनारस, फिर एफएसबी अगेन। सो अगेन इट वाज, और एफएसबी में तो सर ऐसा होता है कि यू गो इन एंड यू कम आउट, यू वेट फॉर 2 मिनट, रिजल्ट आ जाते हैं। और ऐसे बनारस में गया, और फिर भी गया, इट वेंट गुड। अभी मैं फील कर रहा हूँ अच्छा कि हाँ यार होगा, एंड देन सडनली स्क्रीन आउट। मतलब एहसास भी नहीं करने दे रहे, फीलिंग भी नहीं लेने दे रहे कि हम एसएसबी सेंटर के अंदर है, बेटा तुम बाहर निकलो। और दैट वाज इन मार्च 2020, अराउंड जब कोविड आना स्टार्ट हुआ था, आई गेस।
तब शायद लॉकडाउन शुरू कर दिया था, लॉकडाउन मोदी जी ने आगे अनाउंस Yes, कर दिया था। तो जब मेरे को याद है कि मैं जब वापस आया था तो फिर हम्म। मैंने जो मेरे दोस्त स्क्रीन पे थे उनको कॉल किया था, भाई तुम वापस कैसे आए कॉन्फ्रेंस इन्होंने, क्योंकि लॉकडाउन तो हो चुका है। सो हाँ। अरे भाई ये करके आए। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ठीक है, कुछ दोस्त तो मेरे यूपी के ही थे तो वो तो पहुंच गए, हम्म। बट जो बहुत दूर के होंगे वो कैसे गए होंगे मेरे को वो नहीं पता, कैसे क्योंकि जाएंगे? ऑलमोस्ट लॉकडाउन था। हम्म। तो ठीक है, वो फिर नेक्स्ट वापस से मैंने एनडीए दिया, एंड द लास्ट हार्ट ब्रेक फॉर एनडीए दैट वाज इन 3FSB गांधीनगर। वापस से गांधीनगर के साथ तो मेरा अलग ही ऐसे रिश्ता चलता है कि गांधीनगर मुझे देखते ही पसंद नहीं करता, ऐसा लगता है, क्योंकि वहां पे मेरा 2 एफकैट भी हो गया है। तो गांधीनगर वहां पे गया, फिर नहीं हुआ। फिर आई वाज लाइक कि अब जाना है एनआईटी, मतलब अच्छे कॉलेजेस में जाना है, क्योंकि अब तो नहीं हुआ, एनडीए खत्म, तो अब मुझे कहीं और नहीं जाना। तो फिर उसके बाद जेई मेन, फिर लाइक एनआईटी सूरत, एंड देन उसके बाद जब स्टार्ट हुआ, सो वहां पे मुझे एनसीसी मिल गया। लाइक आई डोंट नो हाउ, हमारा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट था, इट वाज 2 राउंड इंटरव्यू, प्रॉपर एसएसबी फीलिंग। आई वाज लाइक ओ वाह, ठीक है, अच्छा लग रहा है। फिर वहां पे जाने के बाद काफी वी वर अटैच्ड टू आर्म्ड फोर्सेस अ लॉट, हमें बहुत सारे कैंप्स वगैरह करने को मिलते थे। लाइक वी डोंट यूज्ड टू गो फॉर आरटीसी, क्योंकि हमारा उसमें काफी ज्यादा टाइम चला जाता था, तो थोड़ा सा वो दिक्कत होती थी, क्योंकि बिकॉज बीइंग इन नेशनल इंस्टीट्यूट काइंड ऑफ। तो फिर लेकिन हम छोटे जितने भी एक हफ्ते के टाइप वाले कैंप्स होते थे ना, वो सारे में हम एक्सेल कर ही जाते थे ऑलमोस्ट। सो मेरे कॉलेज से, मेरे एनसीसी से काफी रिकमेंडेशन आया। लाइक अ फ्रेंड ऑफ माइन इज इन ओटीए चेन्नई, मेरे सीनियर का 14 दिसंबर को पीओपी है, ही इज माय सीनियर ड्रॉसर। Apart from that, a CSM of mine, senior, he is in Air Force Academy. My previous two are serving in armed forces, like the one I am knowing. So that's how. So that's is my NCC, and it is giving recommendation sooner or later. So that's the thing. Apart from after going out, I had to go for my come for my form in aspect ratio. So before that, there was my AFCAT in Dehradun. So I thought, okay, चलते हैं देहरादून, एक बार देख कर आते हैं, अगर हो गया तो फिर यहाँ पे रिजाइन, नहीं हुआ तो फिर ठीक है, I will come back. So again I went, and result was good. I was improving, but I was not knowing कि क्या गलत हो रहा है, क्योंकि I had tried, sir, if you have been 7 times screen out now, आपने सारे फंडे अपना लिए हैं, आपने सारे, you have spoken aggressively, you have spoken formally, you have did everything, और ग्रुप में डिस्कशन में पार्ट किया, ग्रुप डिस्कशन में शांत रहा है, like it is a myth, and I'm still figuring it out, but it's a myth. I don't know what they see in screening, and sometimes you feel that okay, you have fumbled here, maybe you are lacking here, but sometimes it was like कि हाँ यार, इस बार तो होना था यार, इस बार कैसे, मतलब इस बार कैसे, ऐसा वाला सीन था। But anyway, I had just one dream कि हाँ जाना है, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। So I was not never holding me back. After coming in my job also, लाइक ठीक है, जॉब तो अच्छा है, मतलब इट्स अ गुड थिंग, बट फिर भी मैं रात में आके थोड़ा बहुत पढ़ ही लेता था, सीडीएस का, एफकैट का, थोड़ा बहुत ऐसे करता ही रहता था। लाइक ज्यादा नहीं घूमता था, बट पुणे इज अ गुड थिंग। अगर आप पुणे आओ तो पुणे इज अ गुड प्लेस टू, अगर आप गुड प्लेस, आपको घूमने के लिए सब कुछ, मौसम भी बहुत अच्छा है पुणे का। एग्जैक्टली, ये मैंने एसएसबी में भी बताया था। तो ऐसा था कि इट्स अ गुड प्लेस, बट डिडंट लेट मी ऐसे डिस्ट्रैक्ट, मैंने पढ़ाई करता रहा। सीडीएस का भी अभी मैंने एग्जाम क्लियर किया है, आईएमए का अटेम्प्ट है, आई डोंट नो दे विल अलाउ मी टू कम फॉर एसएसबी, और you can come for IMA. ओके सर, सो आई विल होपफुली होप फॉर दैट कि आईएमए अगर क्लियर हो जाए तो दैट्स द बेस्ट। बट मेरे को कोस्ट गार्ड ने एक्सेप्ट किया है, आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट, grateful for Indian Coast Guard. very grateful. I will certainly go for it, or I'm going with very high hopes to do well in academy. So that was like screen out journey ki, screen out iterating ki what went wrong, and then coming back, practicing in front of mirror, writing more PPTs, hazy pictures के लिए practice करना. So one thing is like कि even if it's not working, मतलब वापस से आओ, स्क्रैच बैक से स्टार्ट करो एंड डू इट। मतलब अगर तुम्हें ही करना है तो तुम्हें ही करना है यार। मतलब और सीनियर ऑफ माइन एक बार वो ऐसे मेरे को ऐसे पकड़ते हैं, नहीं सेइंग कि ऐसे कैसे भाई, बी अ मैन, तेरे को कैसे कोई आउट कर सकता है, एकदम लाइक यू नो ऐसे शेर बन जाके दाढ़ वहां पर जाके लुक्ड इनटू माय आईज एंड ही सेड कम ऑन मैन, कर सकता है तू। एंड लाइक देयर इज नो सीनियर एंड नो फ्रेंड ऑफ माइन, ही यूज्ड टू से कि यार तेरा ऐसे कैसे नहीं हो रहा, ऐसे कैसे, तेरे को कैसे बाहर कर सकते हैं यार, स्क्रीन आउट कैसे कर सकते हैं, एटलीस्ट घुसा तो लो अंदर यार, 5 दिन तो देखो, अपॉर्चुनिटी तो दो। एग्जैक्टली, सो वन ऑफ द थिंग इज कि मोटिवेशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स, योर क्लोज फ्रेंड्स, योर सीनियर्स जो आपके आसपास है ना, वो बहुत अफेक्ट करते हैं आपको मेंटली कि हाँ, दैट मोटिवेशन, दैट सेइंग कि भाई होगा तेरा, दैट थिंग पुश्ड मी अ लॉट। एंड द कॉलेज के मेरा जो एनसीसी कोर ग्रुप था ना, उसने बहुत हेल्प किया मेरे को। मतलब
I grewed up there. They वो grew पूरा me. लाइक एटमॉस्फेयर होगा वहां पर, Yes, एसएसबी का जो जोश होता है कि हाँ भाई yes, दोनों yes. सब लोग साथ में तैयारी करेंगे, साथ में एकेडमी जाएंगे, फोड़ेंगे सारे हाँ, एग्जाम्स है ना, फोड़ेंगे सर, दुनिया कर लेंगे मुट्ठी में। फोड़ेंगे was the जोश. हाँ, वही वही। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल कितने एनडीए दिए थे? सर मैंने 5 दिए थे, आपको बताया था। एक तो मैंने हम्म, 11th में दे दिया था, तो आई वाज नॉट एलिजिबल फॉर दैट। हम्म। और 4 मैंने एसएसबी के लिए गया था। तो तो ओवरऑल लाइक 5 एनडीए गिवन, ठीक है, उसमें से एक में एसएसबी के लिए एलिजिबल ही थे, 11th हाँ, क्लास में क्लियर कर लिया था। 4 एनडीए दिए थे जिसमें एलिजिबल था, उसमें से 3 एक स्क्रीन और, आउट और 1 कॉन्फ्रेंस आउट। यस सर। ओके, और उसके फिर अलावा टीएस और 2 डीवी वाले। टीपीएस दिया, 1 नेवी टेक दिया, 2 एफकैट दिया, हम्म, और उसके बाद सीडीएस दिया। फिर आईएमए के लिए भी क्लियर हुआ है। एंड देन पीएसबी दिया, सॉरी सीजी कैट दिया। एंड हम्म। अभी उसमें तो रिकमेंडेड। ओके, सो यार डेफिनेटली आईएमए के लिए पक्का बाहर आना। जैसे मेरा एक दोस्त है, ही इज राइट नाउ इन आईएमए। तो लाइक लास्ट ईयर ओनली इन जनवरी यस वो सर। लाइक इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू अकेडमी गया, ठीक है, एंड ही गॉट अ कॉल फॉर टीजीसी। तो वो फेब्रुवरी में अपनी एसएसबी देने आया था फ्रॉम लाइक कोस्ट गार्ड लाइक इंडियन नवल अकेडमी। तो ही गॉट रिकमेंडेड एंड ही इज राइट नाउ इन आईएमए। तो ऑफिसर आई होप फॉर द कैडेट। बेस्ट, सेम फॉर यू। ठीक है ना। थैंक यू तो सो मच सर। डेफिनेटली यू शुड कम आउट ऑफ द एकेडमी एंड गिव योर एसएसबी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट द लाइक डिटेल्ड प्रोसीजर अबाउट द इंडियन कोस्ट गार्ड। वैसे ज्यादा लोगों को पता नहीं है, ठीक है, जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं और थोड़े बहुत और भी वीडियोस हैं ऑन यूट्यूब, तो विल डिस्कस इन डिटेल। तो लेट्स स्टार्ट विद द पीएसबी। ठीक है, मतलब लाइक तुझे लाइक तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कि स्क्रीनिंग में क्या क्या होता है, तुमने सब कुछ आजमा के रखा हुआ है कि भाई ये साउथ स्क्रीन आउट कैसे हुए, इनको कैसे ओवरकम किया, और ये वाला कैसा एक्सपीरियंस। तो पहले पीएसबी की बात करते हैं। सो सर पीएसबी अगेन इट वाज क्लोज टू पुणे, सो मैंने फर्स्ट ऑप्शन ही गोवा रखा था कि ठीक है एक दिन की है और जाना है उधर। हुआ तो हुआ, नहीं तो गोवा इट इज। सो पीएसबी ऐसे वैसे 4 जगह पे होता है, नोएडा में भी होता है, कोलकाता में भी होता है, एंड देन चेन्नई में और गोवा में। सो द क्लोजेस्ट वन इज एंड इट्स मेक सेंस टू गो देयर ओनली। सो मैं गोवा में गया, उधर एक दिन पहले रिपोर्ट कर लिया, एंड फिर वहां पे डॉम में ही रुका हुआ था। फिर वहां पे कुछ दोस्त मिले एंड एवरीबॉडी वाज प्रिपेयरिंग ऐसे एकदम। आई वाज लाइक कि नहीं इस बार एंजाइटी नहीं होना, 1 एट अ टाइम करके करना है। एंड सर थ्रू आउट द कोस्ट गार्ड में ऐसा मैं बताऊंगा, मेरा एक ही ऐसा मोटो रहा है कि 1 एट अ टाइम शुभम, 1 एट अ टाइम। कि अगर स्टेप ओआईआर, बाय स्टेप। हाँ, हाँ। अगर ओआईआर का मैं एक पार्ट कर रहा हूँ तो आई विल फोकस ऑन दैट ओनली। हम्म, अगर मैं पीपी लिख रहा हूँ, पिक्चर परसेप्शन कर रहा हूँ, तो आई विल डू पिक्चर परसेप्शन ओनली। अगर मैं डीटी कर रहा हूँ तो आई विल फोकस ऑन दैट नरेशन एंड देन डिस्कशन। ऐसा सीन था। तो 1 एट अ टाइम करके फिर गया मैं, और फिर वापस से सेम ओआईआर टाइप तो नहीं, बट दे गेव अस ओएमआर। ओएमआर में वो क्वेश्चंस आ रहे थे, हमें फिल करने थे। सो इट वाज यूनिक अपार्ट फ्रॉम दिस नॉर्मल एसएसबीज कि हमें ओएमआर फिल करने। क्वेश्चंस वर लाइक एकदम फिंगर फास्ट टाइप, कि ऐसे दिखा तुम्हें आंसर टिक करना है, दिखा और तुम्हें आंसर टिक करना है। सो ऐसे थे। सो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस ऑफ दैट कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी टाइप भी था। तो बट एनीवे एनीथिंग दैट कम्स क्लोज टू मैथ्स और मेंटल एबिलिटी, वो पार्ट मेरे से हो जाता है आसानी से। सो वो भी हो गया पार्ट। एंड इसके बारे में थोड़ी मेरी क्लैरिटी थी, आई टोल्ड यू फ्रॉम योर वीडियोस एंड अदर वीडियोस दैट आई सॉ। सो comes the PPDT part. So again normal, the same SSB जैसे होता है वैसे ही they took us, एंड फिर उन्होंने पिक्चर परसीव कराया। आई रोट अ गुड स्टोरी, और मैं खुश था कि हाँ ठीक है अच्छा बना। एंड देन डिस्कशन वाज थोड़ा सा ऐसा कि मतलब मैं मॉड्यूलेट करने की कोशिश किया था, क्योंकि मैं अपने सीनियर से भी पूछ रखा था कि हाउ इट इज। सो इट्स लाइक कि यार यू शो देम दैट यू डिजर्व योर 5 days, ये करना है। यू शो देम दैट यू डिजर्व योर 5 days, दैट्स इट। सो मैंने यही करने की कोशिश किया। मैं नरेशन ठीक दिया, एंड फिर उसके बाद डिस्कशन में एवरीबडी वाज वेरी हासलिंग, ऐसे ही बहुत बात कर रहे थे, ऐसे बोल रहे थे ऑलमोस्ट। उसमें कुछ फ्रेशर्स कुछ रिपीटर्स, आई डोंट नो ये कैसे हुआ, क्योंकि बाकी जगह पे ऐसा होता है फ्रेशर रिपीटर से डिवाइड करते हैं, और मैंने कुछ से पूछा था तो उसमें था कि कुछ फ्रेशर्स और कुछ रिपीटर मिक्स थे। सो दैट वाज वन थिंग दैट आई वुड टेल यू। और फिर ऐसे बात कर रहे थे, तो फिर ऐसे सडनली मतलब ऐसा था कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। देन थोड़ा सा लाउड वॉइस में किया, जेंटलमैन आई थिंक, ऐसे करके। देन सडनली हाई नोट पे कि लाइक लोग देखे मेरी तरफ कि भाई ये देखो इधर भी है कोई। हाँ हाँ। So suddenly, and then everybody just looked at सब शांत, and then I spoke few points, 2 3, and then everything started. So वहां पे ऐसा लगा कि थोड़ा सा तो इनको ग्रुप एज इफेक्ट मिल गया, होगी। हाँ एज मिल गया है कि ये बंदा अलग से चमका है, ये हाँ, यहाँ पर कोई थोड़ा बैठा सा। हाँ है। कि मतलब यार इधर थोड़ा सा कॉर्नर साइड में ही है, बट यस ही इज द ऐसा। तो फिर वो अच्छा गया, एज यूजुअल 5-6 मिनट का ग्रुप डिस्कशन या ऐसा चला था। एंड फिर वी केम आउट, और इसमें भी वही मैंने बनारस का बताया था ना, वैसे ही हुआ। वो तुरंत ऐसे आया, और
मुझे ना ऐसे हल्का हल्का वो हाईलाइट करके रखते राइट आपका हाँ, नाम, हाँ, हाँ। ऐसा ऐसा दिख रहा था। दिख गया था क्या? और मेरे को ऐसा था कि यार ये थोड़ा सा नीचे साइड पे तो मैं हूँ, मतलब चेस्ट नंबर मेरा नीचे ही है, ऐसा लग रहा था कि मेरा है, और उन्होंने 2 हाईलाइट कर रखे थे। तो ऐसा अंदर से थोड़ी खुशी तो हो गई थी कि यार पता चल गया है कि हो रहा है, नाम आ रहा है इस बार। हो रहा है। फिर मैंने दिया और हुँ, हो गया, मतलब ऐसा। हुँ, तो बस मतलब ऐसे उन्होंने नाम बोला एंड देन 2 ऑफ अस गॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ 14 समथिंग, 14 एग्जैक्टली। सो ओके। हम दोस्त इन हुए, और फिर हम बाहर आए, फिर वो अगेन डॉक्यूमेंटेशन। सो यहाँ पे मैं बस एक चीज बताऊंगा सबको कि डॉक्यूमेंटेशन में प्लीज कीप कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्लीज कीप कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सर मेरे को नहीं पता था वो एक्चुअली, यू नेवर टेक कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर एसएसबी राइट। हुँ, हुँ। सो मैं उसको कास्ट सर्टिफिकेट पढ़ लिया था, लाइक रियली सॉरी ओवर देयर, बट मैं कास्ट सर्टिफिकेट पढ़ लिया था उसको एंड इन हरी, एंड फिर मैं नहीं ले गया था करेक्टर सर्टिफिकेट। हुँ। फिर वहां पे मेरे को तो कितना परेशान किया उन लोगों ने कि नहीं ये वो। आई कॉल्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसने जूनियर्स को कॉल किया जो कॉलेज में है, वो लोग फटाफट मेरे लिए करेक्टर सर्टिफिकेट बनाए। आई एम रियली थैंकफुल मेरे एनसीसी जूनियर्स को कि वो फटाफट गए, दे वेंट टू माय एचओडी, वहां से साइन करवाया। बट उन्होंने मेरे को टाइम लिमिट बस 1 ही घंटे दिए थे, आपको पता है, 1 घंटे, 1 घंटे में इफ यू ब्रिंग इट डन। और मेरा मोबाइल भी नहीं था मेरे पास, मुझे ऑफिशियल्स का मोबाइल लेना था, हुँ, बट वो नहीं हो पाया, 1 घंटे में तो नहीं हो पाया ऑब्वियसली। नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने मेरा नाम काट दिया, रिजेक्टेड, डॉक्यूमेंट आउट, डॉक्यूमेंट आउट कर दिया। आई वाज सीइंग एवरीथिंग, मेरे सामने ही हो रहा है। पेनफुल बोलता भाई पहली बार स्क्रीन इन हुआ 7 अटेम्प्ट के बाद और तुम मैं मेरे साथ ये कर रहे हो। सर आई कांट टेल यू दैट फीलिंग की, मतलब यार बहुत मुश्किल से हुआ हूँ, ऐसा मत करो यार मैं आपके प्लीज। पैर पड़ता हूँ सर, प्लीज मुझे अंदर ले लो। सो देयर इज अ मैम ओवर देयर, ठीक है, बाद में आई विल बी थैंकफुल टू हर कि उन्होंने ले लिया, बट आई विल टेल यू आगे क्या हुआ। फिर उन्होंने रिजेक्ट किया, एक सील किया, लिखा कि इतने बच्चे स्क्रीनिंग, ठीक है, 11 स्क्रीन हुए इस बैच से, एक डॉक्यूमेंट आउट हुआ है, और देयर वाज 2 सील्ड ब्लैक बॉक्सेस जिसमें वो रखा गया, मेरे सामने ही हो रहा है सब कुछ। उन्होंने एडमिन से मेरा कि डॉक्यूमेंट आउट कर दिया जो उनका इंटरनेट का होता है, फिर मेरे सामने एक बॉक्स में रखा कि हाँ ठीक है ये बैक रिजेक्टेड। आई वेंट, मैंने बोला कि ओके शुभम लाइफ इट इज, लेट्स गो। ठीक है, और मूव फिर ऑन। मैंने उठाया, मैम को मैंने सॉरी कहा, और फिर आई वेंट, ठीक है। फिर मैं वापस बाहर गया ना, लाइक जस्ट मेरे को मोबाइल मिली बाहर गेट के पास, एंड आई वाज टॉकिंग टू, मतलब वो एक डीएससी अंकल थे वहां पे, जमाल अंकल, एज फार एज आई नो हिज नेम। सो आई वाज टॉकिंग टू हिम एंड बीएससी 2-3 मिनट बात कर रहा था कि हाँ सर ऐसा हो गया, अरे कोई बात नहीं, वो भी मेरे को ऐसे कंसोल कर रहा सांत्वना दे रहे हैं। हाँ, हाँ, कहने लगा हाँ। कि हाँ इट्स ओके, इट्स फाइन, मेरी गलती है, बट इट्स ओके, टेक इट। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया था कि मेरे एक ऐसे फ्रेंड ने को जिसने डॉक्यूमेंट के लिए बोला था, उसने ऐसे कॉल किया मेरे को, एंड शी सेड कि अरे ऐसा है कि तुम्हारा बन गया डॉक्यूमेंट, और मैंने उन सर को भेज भी दिया है। हम्म। मैंने बोला अब क्या करूं, अब तो अब सील भी लग चुकी है, बॉक्स में डाल चुका है डॉक्यूमेंट। हाँ, पीएसबी से मैं 100 मीटर आगे आ चुका था, ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब कॉल करके फिर मेरा जूनियर मेरे को कॉल करता है, मेरे को बोलता है कि हिज नेम इज सावन भाटिया, एंड ही स्टार्टेड कि सर 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 प्लीज गो बैक, सर सर प्लीज गो बैक, सर सर मैंने भेज दिया, सर आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। वो ऐसे सॉरी फील करने लगा, मैंने कहा यार मेरे को इतना बुरा नहीं लग रहा है, इट्स ओके, इट्स फाइन, तुमने ट्राई तो किया, एटलीस्ट मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ। फिर देन माय फ्रेंड स्टार्टेड ट्राइंग कि यार भेज तो दिया था, ऐसा सब कुछ मैंने बात भी किया, मानने में। रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं इतनी हाँ मेहनत हाँ, करने के बाद? तो लाइक एवरीबॉडी नो अबाउट मी कि ऐसा हुआ है मेरे साथ कि स्क्रीन आउट एंड ऑल ऐसा। तो फिर ये एनसीसी के ही है, मेरे एनसीसी के जूनियर, एनसीसी के फ्रेंड। तो फिर मैंने वापस, मैंने बोला यार अगर ये इतना एफर्ट कर रहे हैं तो आई शुड आल्सो डू। मैं फॉर्मल्स में 2 किलोमीटर ऐसे रनिंग करते गया, तो मैंने प्रिपरेशन के साथ गया, क्योंकि उन्होंने मेरे एडमिट कार्ड पे कट कर दिया था, रिजेक्टेड लिख दिया था। मैंने बोला यार उस पे तो ये चीज चेंजेस करेंगे नहीं, सो यू हैव टू टेक योर एडमिट कार्ड। मैं फटाक से भाग के गया, लाइक अराउंड मैं उससे दूर था एफएसबी से, वहां से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर पे एक ग्राउंड, एक ऐसे कैफे टाइप है जहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा वो प्रिंट आउट से। वहां मैं गया, फटाक से कलर प्रिंट आउट किया, उस पे मैंने अपना फोटो चिपकाया, उस पे साइन किया, एवरीथिंग है कि एकदम बस उनको रिकमेंडेड लिखना है उस पे, और कुछ नहीं लिखना, वो रिकमेंडेड सील फॉर, लगानी है। हाँ रिकमेंडेड फॉर एफएसबी। और वो मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट वगैरह लेकर फटाक से भाग के गया, और आई जस्ट वेंट इन द रूम, एंड फिर मैंने मैम को बोला एक्सक्यूज मी मैम, मे आई कम इन। फिर बोलती है फिर आ गया तुम। मैंने बोला मैम इस बार डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट लेकर बन गया आया। एंड शी वाज लाइक लिटरली ऐसे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ हो चुका है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर मैंने बोला मैम एडमिन से ही चेंज हुआ है ना, एडमिन से तो आप चेंज कर ही सकते हो, प्लीज प्लीज मैम, मतलब लिटरली आई बेग्ड हर अ लॉट। फिर उन्होंने कहा ओके गो सिट इन द कॉर्नर, एकदम ऐसे होता है ना कि मासूम सा बच्चा हाँ, कि मैं तो एकदम ऐसे चेहरा करके गया था, एंड देन वो मुझे कि कोने में, मुरझाया हुआ है, इस बच्चे की हेल्प करो गरीब हाँ, की। उन्होंने कोने में मुझे ऐसे रख दिया, सो बोला कि जाके वहां पे बैठो, मैं आखिरी में बुलाती हूँ सबका होने के बाद। एंड देन शी टॉक्ड, शी वेंट टू डीआईजी सर आई गेस, और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सर। इस वजह से मैंने उनके रैंक से पहचान रहा हूँ, नाम तो मैं उनका पढ़ नहीं पाया बिकॉज दे रिमूव देयर नेम, बट यहाँ पे पूरा ऐसे एकदम सॉलिड ब्लैक था, सो आई गेस डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल।
So वो सर आए and then he bloody chap, you forget your documents. हाँ तुमने समझ क्या रखा, you come for these. मैंने कहा I'm so sorry sir, I totally understand, I'm so sorry sir, sorry. And then it went over. They changed. उन्होंने not recommended से recommended for FSB किया. उन्होंने सील्ड बॉक्स से, सब अब मेरे सामने हो रहा है, सील्ड बॉक्स से निकाला डॉक्यूमेंट, उसको फाड़ा, श्रेड किया, मेरा जो नया एडमिट कार्ड लेकर गया था उस पर रिकमेंडेड फॉर FSB लिखा, एंड आई रोट दोज पीछे की, हाँ भाई मैं नहीं लेकर आया हूँ अंडरटेकिंग्स, एंड आई विल शो इट टू द FSB, एंड इट वेंट वेल, हो गया, गोवा वाज सक्सेसफुल। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट याद रहेगा। और लाइक कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पता नहीं इस पर्टिकुलर कोस्ट गार्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले Yes, करता है। it's very important. Like literally, I will say that if anybody is watching, please make sure you take a character certificate that is under 6 months. It's 6 months. Make a new one only, क्योंकि कॉलेज वाले मना थोड़ी ना करेंगे तुम्हारे मना लिए। नहीं करेंगे, वो तो चाहेंगे कि भाई हमारा बच्चा चला जाए और हमारा नाम रोशन करे आगे चल के। Exactly. So, but I misread that. If we offend, sorry for there, but ठीक है. कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने लाइक स्टेट गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं, वो भी वो लेजिबल नहीं है वहां पर, वो एक्सेप्ट नहीं करते लाइक स्टेट गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट। तो मैंने तो, मेरे साथ में मेरा एक दोस्त था, ठीक है, हम दोनों एक साथ स्क्रीन इन हुए, ठीक है, हम लोग पहले एक बार SSB में साथ में रह चुके हैं, ठीक है, तो वो भी आया, तो वो भी स्क्रीन इन हो गया, मैं भी स्क्रीन इन हो गया, लेकिन उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो स्टेट गवर्नमेंट का था, वो कर्नाटक से था, ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट वाला एक्सेप्ट ही नहीं किया और उसको डॉक्यूमेंट आउट कर दिया मेरे सामने। लाइक लिटरली मतलब मैं उसके साथ रहा था पिछली SSB में, तो मुझे अच्छी दोस्ती थी हमारी, तो मैं उसकी जो दर्द था ना लाइक फील कर पा रहा था। Yes, sir, ये exactly, like, exactly, sir. जब आप स्क्रीन इन हो जाओ फिर भी आपको अंदर नहीं जाने देते, वो अलग पेन है, ठीक है ना। ओके सो यार लाइक शुभम, तुम्हारी पिक्चर क्या थी और तुम्हारी स्टोरी क्या थी PSB में, इफ यू कैन रिकॉल? सर इट वाज समथिंग कि ऐसे कोई शो कर रहा है कुछ ऐसे डेस्कटॉप पे, एंड देन वहां पे लोग ऐसे, मतलब उसके बगल में कोई खड़ा था, सामने कोई बंदा ऐसे बैठा हुआ था, सो इट वाज सिमिलर टू प्लानिंग सिचुएशन समथिंग, सो मैंने कुछ इसे प्लानिंग पे बनाया था, कुछ समझा रहा था ऐसा कुछ? जैसे जैसे और कुछ ऐसे पिक्चर था, सो मैंने प्लानिंग पेपर बनाया था। ओके ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर PSB, ठीक Yes. है, तो लाइक 7 अटेम्प्ट्स एंड ओवर द लॉन्ग ऑफ लाइक ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, ठीक है, तुम कैसे ये झेलोगे, ठीक है, इट इज अ वेरी ऊपर से ये टफ सिचुएशन। calamities भी हो गया मेरे साथ की हाँ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला। तो वो था कि यार मतलब इतने सालों बाद इतनी मेहनत के बाद अंदर जाओ और फिर वो लाइक वो होता है ना कि हाथ में आया मुंह को नहीं लगा, ठीक है ना? Exactly. तो खेल खत्म हो जाता, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं FSB की, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। तो Yes. लाइक आफ्टर योर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस दिस वाज योर गोइंग टू बी योर सेकंड कॉन्फ्रेंस, Yes. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले साइक की बात करते हैं, ठीक है, तो लाइक यू आर फ्रॉम NCC बैकग्राउंड, ठीक है, पूरा NDA वाला जोश पूरा फुल था, ठीक है, तो Yes, sir. तुमने लाइक स्पेसिफिकली साइकोलॉजी की कैसे प्रैक्टिस करी, प्रिपेयर किया, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर FSB मतलब लाइक किस टाइप की पिक्चर्स आई थी, कुछ थीम्स एग्जांपल्स देके समझा सकते हो ताकि ऑडियंस को समझ आए कि यार क्या अप्रोच होना चाहिए साइक को लेके? Sir, again, that those 12 pictures start and VAT, SRT and SD. So SD मैं पहले से ही करके गया था. I will talk about SD first. मैं SD पहले से ही गया था, और SD का one of the important point जो मेरे एक सीनियर ने बताया था, जब you think about कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं, टीचर्स क्या सोचते हैं, so मेरे एक सीनियर ने बताया था, and I think it will work further. He said कि यार तू ऐसा करना, तू अपने दोस्तों से पूछ तेरे बारे में, और तू लिख सब कुछ कि ये दिस इज पॉइंट, क्योंकि दोस्त तेरे सबसे ज्यादा तुझे ऑब्जर्व करेंगे, यू स्पेंड सो मच टाइम विद योर फ्रेंड्स, राइट? अभी तुम कॉलेज में हो तो तुम पेरेंट्स से दूर हो, ऑलमोस्ट टीचर्स से नेग्लिजिबल ही होता है, और किसी लाइक विथ यू एंड योर फ्रेंड्स। तो मैंने सारा लिख डाला, एंड सारे दोस्तों से, ऑलमोस्ट सारे दोस्तों से पूछ डाला, सारे पॉइंट आउट किया, एंड फिर उन्होंने बोला कि अब तू वो चीज देख कि ये क्वालिटीज तेरा कौन ऑब्जर्व करेगा, तेरे फ्रेंड्स ऑब्जर्व करेंगे कि तेरे टीचर से रिलेटेड है। तो फिर उन्होंने ऐसा बोला कि फिर उसको कैटेगराइज कर कि ये टीचर्स वाला पार्ट है, ये पेरेंट्स वाला पार्ट है, ये फ्रेंड्स वाला पार्ट है, ये तेरा सेल्फ का है, एंड देन यू राइट इट, एंड होपफुली आई मेक अ गुड वन। सो SD तो मैं पहले से ही करके गया था, एंड आई रोट, एंड इट हेल्प मी, क्योंकि फिर फटाफट ऐसे लिख दिया जो टाइम लिमिट में। अपार्ट फ्रॉम दैट, सो टैट का अगेन मतलब मेरा ऐसा हो रहा था ना कि मैं टैट में थोड़ा इधर उधर की वीडियोस देख के ऐसे थोड़ा सा मैं कुछ भी ऐसे रिजेंबलेंस ऐसे एकदम हाई समझ के ऐसे बना दे रहा था। सो दिस इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, उससे मैं थोड़ा सा बातचीत कर रहा था, करंटली ही इज इन एयरफोर्स एकेडमी, पायलट की ट्रेनिंग कर रहा है। सो वो ऐसे लगातार, पहले वो ही वाज स्क्रीनड आउट, वो भी 4 बार ऐसे हुआ, फिर 4 बार रिकमेंडेड ऐसे फटाक से। तो मैंने बोला कि यार ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बार तू टैट का थोड़ा सा बता सकते हो? उसने बोला कि यार बहुत हाई फाई क्यों लिख रहा है, बहुत ऐसे मतलब अपने आउट ऑफ कंफर्ट क्यों जा रहा है, तू जैसा है वैसा ही लिखेगा, राइट?
अगर तू एनसीसी से है तो तू एनसीसी रिलेटेड लिखेगा, तू अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड करेगा, तू क्यों आईएएस का लिख रहा है, ऐसा मतलब उसने बताया था कि तू क्यों सोच रहा है कि तू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला काम करने लगेगा, यू मेक द कंफर्ट जोन जिसमें तू है। मैंने वो अप्रोच किया, मैंने ठीक है कंफर्ट जोन करके गया। सर इस बार मैं रिकमेंडेशन का तो मैंने सोच रहा था, बस कि इस बार मैं खुद को एक्सप्रेस करके आऊंगा, एक्सप्रेस कर गया, इफ दे फाइंड मी सुटेबल दे विल टेक मी, नहीं किया तो फिर ठीक है, दैट्स ऑन मी, आई विल कम बैक अगेन। सो फिर इस बार वही अप्रोच था सर, मैंने वही नेट पे जो भी ऐसे टीपीडीटी के कुछ भी ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं या फिर तो जस्ट मैं पिक्चर्स देखता था, खुद का स्टोरी बनाता था। कभी कभी कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ इस पे तो कोई थीम दे सकता है क्या, कुछ एक्स्ट्रा थीम दे सकता है, फिर वही सेम अप्रोच दैट मोस्ट ऑफ अस वुड हैव लिसन्ड की एक पिक्चर से 2-3 स्टोरीज बनाना, 3-4 स्टोरीज बनाना, दैट आई फॉलोड एंड इट विल हेल्प, सर्टेनली इट विल हेल्प, इट विल हेल्प इन योर राइटिंग, इट विल हेल्प इन योर थिंकिंग कि हाँ फटाक से कैसे आ जाता दिमाग में क्लैरिटी, जो डिसीजन वो जो होते हैं ना, एक्शंस डिटेल होती है, हाँ हाँ। डिटेल वाली वो चीज आ जाती है। सो लाइक पिक्चर्स की बात करूंगा तो देयर वाज अ पिक्चर जिसमें ऐसे भाग रहा है, 3-4 बंदे ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे वुड्स टाइप था और सामने एक फोर्ट टाइप ऐसे आप कह सकते हो। तो मैं पुणे से हूँ, हमने बीच में एक प्लान किया था विजापुर ट्रैक का, तो मैंने उससे रिलेटेड बना दिया कि हाँ हमने कैसे क्या किया, कैसे प्लानिंग किया। सो वो प्रॉपर एक टीएटी था और काफी ये अच्छा वो वाली पिक्चर थी क्या जिसमें एक फोर्ट सामने और एक रोड जा रही है, उस फोर्ट की तरफ बगल में पेड़ वेड़ है और 3 लोग जा रहे हैं फॉर्मल्स ऐसा कुछ कपड़े पहन के। यस लाइक उसमें एक फोर्ट में तुमने देखा पीछे लाइक कुछ बंदे रस्सी से चढ़ रहे हैं, वो भी था क्या? सर नहीं ऐसा कुछ नहीं था, और फॉर्मल्स तो डेफिनेटली नहीं था, शॉर्ट्स था एंड ऐसा शॉर्ट्स कुछ। में थे तो हाँ पिक्चर डिफरेंट होगी। तो फिर मैंने ऐसे दोस्तों वाला बना दिया कि हाँ ट्रैक पे ट्रैकिंग। ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, वो बना दिया। फिर एक ऐसा नेगेटिव पिक्चर टाइप था, लाइक आई डोंट नो नेगेटिव बोलूंगा कि नहीं, बट लेट्स से कि तो ऐसा एक आदमी ऐसे हॉस्पिटल वाली सीन थी और ऐसे लाइक काफी लोग ले डाउन थे वहां पे और फिर इंजर्ड था वो आदमी और डॉक्टर उसको देख रहा है। सो मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट वेम्बन यार्ड का स्लाइड हुआ था ना, लैंडस्लाइड, तो वो आया मेरे दिमाग में। और फिर मैं घूमने फिरने से भी हूँ, तो मैंने ऐसा बनाया था कि मैं केरला गया हूँ, मैं घूम रहा हूँ उधर साइड पे एंड फिर वहां पे देयर इज अ प्लेस, वहां पे घूम रहा, अच्छे से उस प्लेस को घुमा है। सडनली आई वाज इन माय रेस्ट हाउस, वहां पे रेस्ट कर रहा था, लैंडस्लाइड हुआ, फिर मैं फटाक से मैं भी गया एज बीइंग इन की सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना एंड ऑल, वहां पे एनडीआरएफ की टीम वगैरह आई थी। एज आई वाज मतलब मैं बहुत अच्छे से घूम रखा था उस जगह को, तो फिर मैंने वहां के एनडीआरएफ टीम को सबको बताया कि यहाँ पे लोकेशंस पे लोग ट्रैप हो सकते हैं, ये घूमने की प्लेस है एंड यहाँ पे आप जा सकते हो, शोड देम वे एवरीथिंग। मीनवाइल सारे जिनको इंजर्ड है उनको अच्छी जगह पे ले जाना, ऐसे मेक अ गुड स्टोरी। सो वो एक स्टोरी मेरे को याद आती है। फिर देयर इज अ स्टोरी जहाँ पे मतलब ऐसे फॉरेस्ट टाइप था और कुछ ऐसे एक आदमी बैठा हुआ था और वो किसी कुछ ऐसे बता रहा था। सो मेरे को सर ना मतलब ऐसे हमेशा से सर आए कि ऐसे पहाड़ पे ऐसे रेस्क्यू टीम टाइप ऐसे कुछ, तो जनरली मेरे दिमाग में वही फर्स्ट थॉट आता है। जैसे मैं प्रैक्टिस भी करता था, मैंने बना दिया, तो मैंने एक रेस्क्यू ऑप पे बना दिया कि वो मतलब खुद मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन में तो करता ही था, साथ में उन्हें एक स्टार्टअप टाइप ऐसे बनाया कि वो लोगों को माउंटेनियरिंग सिखाता था, वो ऐसे कराता था। एक कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन जो ऐसे माउंटेनियरिंग सेक्टर में है, तो यू कैन से दैट वहां से इंस्पिरेशन आया कि वो स्टार्ट करना, कि सबको सिखाना कि बेसिक से बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए जाओ, फिर वो कोर्स करो, एडवांस के लिए जाओ, यू कैन ज्वाइन हाई एल्टीट्यूड में रेस्क्यू ऑप्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। सो उस पे रिलेटेड था। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ अटैक्स के थे, कुछ ऐसे था। सो आई कांट रिकॉल एग्जैक्टली 12 बट दीस वर द फ्यू पिक्चर्स। ओके ओके फाइन। सो जैसे तुमने वो जो एनडीआरएफ बनाया उसमें लाइक तुमने अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट था उसको एनडीआरएफ का ऑफिसर नहीं बनाया था, उसको तुमने एक नॉर्मल हाँ लाइक सिटीजन बनाया था। लाइक ही वेंट टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, वो एक्सप्लोर कर रहा था वायनाड या दूसरी प्लेसेस को, और उसको पता चलता है वहां पे कैलेमिटी आती है, फ्लड्स आते हैं, फ्लैश फ्लड्स आते हैं, तो लाइक यू आर हेल्पिंग दी अथॉरिटीज यस एंड सर सिक्योरिटी एग्जैक्टली। ऑफिशियल्स। ओके ओके फाइन। ठीक है, तो लाइक एक्शंस के लिए क्या करते थे, रिसर्च करते थे, क्या सीन रहता था? एक्शंस के लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करते थे कि डिटेल में मुझे पता होना चाहिए उसके बारे में? सर ये तो मैंने थोड़ा सा किया था बीच में, बिकॉज मेरे को किसी ने बताया था कि लाइक अब तो ऐसे लाइक हर एक जगह एवरीबॉडी से दैट कि एक्शन डालो, एक्शन आइटम डालो। जो मेरे कपल ऑफ फ्रेंड्स एवरीबॉडी से दैट कि एक्शन आइटम डालो एंड डेफिनेटली इट वर्क्स। कि भाई अगर तेरा स्टोरी है तो अगर तुझे अपना ओएलक्यू दिखाना है तो इट शुड बी कि उसमें तेरी क्वालिटीज दिखे, और वो एक्शंस के थ्रू ही दिखेंगे ना, बैठे बैठे तो दिख नहीं सकते। नहीं दिख सकते। तो सर यस एग्जैक्टली, मैं थोड़ा बहुत कि हाँ कि अगर माउंटेनियरिंग रिलेटेड है तो माउंटेनियरिंग के लिए वो वर्ड्स क्या हो सकते हैं। अगर लेट्स सपोज कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करनी है तो उसमें क्या कैसे वर्ड्स हो सकते हैं, एम्ब्यूश, ठीक है, वो करना। सो टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू दैट टेक्निकल टर्म्स मैंने ज्यादा ढूंढे थे कि हाँ ठीक है, जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं ना, वो वर्ड्स भी बहुत इफेक्ट डालते हैं कि हाँ ही नोज दैट, ही नो दैट। सो वहां से डायरेक्टली आउटकम आता है कि हाँ कि इसको इस बारे में क्लैरिटी है एंड ही इज डूइंग इट। सो ऐसा सीन था मेरा। ओके।
So this was all about thematic perception test. हाँ ठीक सर, है, which carries around 70 to 80% weightage of your psych. कि हाँ. लाइक अगर टैट अच्छा होगा तो ही तुम्हारा आगे का काम बढ़ेगा. ठीक है. And it went certainly well, as far as I can recall. सेटिस्फेक्शन था जब टैट किया उसके बाद सेटिस्फाइड थे. हाँ मतलब आई डेफिनेटली यू आर वरीड अबाउट, क्योंकि यार हर 4 मिनट बाद एक पिक्चर आ रहे हैं, तो कौन सी आएगी, कैसा स्टोरी बनेगा, वो तुम्हें पता नहीं होता है. बट सडनली जब किया मैं, आई वाज लाइक कि वन एट अ टाइम शुभम, वन एट अ टाइम हो गया. ओके. तो इसके बाद वैट आता है हमारा. वैट का कैसा तैयारी थी, क्या सर सीन था? वैट का तो सर मेरे पास ना एक मैंने एफपा का मेरे को एक मटेरियल मिल गया था. सो उसमें उन्होंने पूरा वो करके रखा था, लाइक यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो वो है. सो आई यूज्ड टू जस्ट प्ले दैट, और मैं लगातार 60 तो नहीं करता था, बट ऐसे 30 टाइप ऐसे करता रहता था मैं. और आई यूज्ड टू मेक गुड वीडियो, सॉरी गुड सेंटेंसेस. मतलब स्टार्टिंग से ही मैंने कर लिया था, तो ऐसा होता है मेरे दिमाग में ऐसे आ जाते थे सेंटेंसेस, तो लाइक, और इट वाज मोर टुवर्ड कि नहीं आते थे नेगेटिव, वो अच्छे हो जाते थे. लाइक ऑब्स्टिकल आया तो मेरे दिमाग में ऑब्स्टिकल से प्रोग्रेस आएगा, अगर स्ट्रगल आया तो स्ट्रगल से मेरे दिमाग में आएगा कि स्ट्रगल से मेरा खुद का एफर्ट आगे बढ़ेगा, कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं स्ट्रांग बनूंगा. सो मेरे दिमाग में ऐसे एक आने लगे थे वैट के, तो और वैट अब हो ही जाता था मेरे से. तो वैट मैंने ऑलमोस्ट अटेम्प्ट तो सारे ही कर दिए थे, कुछ 5 अराउंड्स मेरे छूटे थे, बाकी मैंने वैट सारे कर दिए थे. सो वैट का तो क्या है कि वैट अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस. मतलब ऐसा तुम बिल्कुल अज्यूम नहीं कर सकते हो कि यू गो देयर एंड यू डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग एकदम अच्छा सेंटेंस, की ऐसे वर्ड्स आए and फटाफट लिख दिया. देयर आर फ्यू पर्टिकुलर वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपके दिमाग में सेंटेंस नहीं आता था, तो मैं उससे रिलेटेड मैं कुछ वर्ड्स तो लिख देता था कि हाँ मेरे दिमाग में ये आया तो ये पिक्चर आया मेरे दिमाग में, या ये इमोशन आया, ये मैं लिख देता था. सो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू फॉर वैट. ओके फाइन. तो लाइक 55 वैट्स अराउंड लाइक अटेम्प्ट किए थे हाँ. इस अटेम्प्ट में. ठीक है. एंड आई फॉरगॉट टू टेल आवर ऑडियंस दैट यू गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 फॉर टेक्निकल थिंग ना. Yes, सो sir. लाइक फॉर इलेक्ट्रिकल नो. यस यस, इलेक्ट्रिक. ओके. सो वो भी बड़ी बात है यार. ठीक है. लाइक कितने लाइक इलेक्ट्रिकल में कितने बंदे सेलेक्ट किए उन्होंने? सर 10, और यूआर में 1 ही, मतलब यूआर में 2 लोगों को, और फिर उसके ओवरऑल बाद 10 है. ठीक यस है. ओके. ओवरऑल यू गॉट ऑल इंडिया रैंक 1. यस. ये नाइस. ठीक है. तो हमारा वैट हो जाता है. इसके बाद हमारा एसआरटी आता है. तो एसआरटी के लिए क्या अप्रोच रहता था एंड हाउ मेनी एसआरटीज यू अटेम्प्टेड दिस टाइम? सर एसआरटी तो ना, जब आप एक एसएसबी एस्पिरेंट हो तो आपके दिमाग में हमेशा एसआरटी चलता है. यू बिलीव मी और नॉट, आपके दिमाग में हमेशा एसआरटी चलता है. जब भी आप कहीं से दोस्तों के साथ बाहर भी जाओगे ना, तो आपके दिमाग में से चलेगा यार इसमें ऐसा कर सकता है, इसमें ऐसा कर सकता है. आप ट्रैक पे जा रहे हो, ट्रैक पे अरे यार अगर इधर कुछ हो गया तो क्या करोगे. आप ऐसे नॉर्मल रोड पे चल रहे हो, फिर वो वाले दिमाग में आ जाते हैं ना कि अचानक से कैसे 4 लोगों ने खेल लिया तो फिर क्या करोगे. सो इट्स ऑलवेज इन माई माइंड. मेरे को ऐसा लगता था कि यार जिंदगी में कुछ और नहीं कर रहा हूँ. एंड आपको पता है आपके दोस्त भी ऐसे बोलेंगे अरे ऑफिसर एसआरटी है ये करना, रियल लाइफ एसआरटी है. यू विल ऑलवेज, मतलब अगर ऐसे आपके सराउंडिंग्स वाले वो एसएसबी वाले हैं तो दे विल ऑलवेज मेंशन कि अरे ऑफिसर ये तो एसआरटी है, रियल लाइफ एसआरटी है कर. सो एसआरटी अगेन सर, जैसे मैं 30 वाला वो प्रैक्टिस करता था, तो रियल लाइफ तो मैं सोचता ही रहता था कि ये कैसे कैसे होएगा. वो अगेन आफ्टर 30 वर्ड्स मैं 20 या 30 एसआरटी अगेन मैं प्रैक्टिस करता था. और एक सर आई गेस आप ही के टेलीग्राम पे एक 400 एसआरटीज का एक पीडीएफ है आई गेस. एक्चुअली वो 400 वर्ड्स का पीडीएफ है फॉर वैट. ठीक है. अच्छा, और ठीक है. एसआरटी का 120 एसआरटी का एक पीडीएफ है. I couldn't recall exactly. So ऐसे एक पीडीएफ है, so वो भी मैं डाउनलोड किया था एंड मैं उससे भी प्रैक्टिस करता था. डेफिनेटली वो भी ऐड किया. सो अगेन सर प्रैक्टिस तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि मोर और सिमिलर इट इज सेम एसआरटी. So जब तुम्हें पता है कि तुम एक अनप्रेशराइज्ड सिचुएशन में आराम से उसका आंसर निकाल सकते हो, so that you can use that in a pressurized situation, तो why not? So practice again sir SRT. So I did that. practice and practice for psych. हाँ सर, साइक के लिए तो डेफिनेटली सर, बिकॉज प्रैक्टिस बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस, ये तो सबने कहा है. सो एंड डेफिनेटली इट वर्क्स, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को तो किया है. कॉन्फिडेंस इज द की. लाइक इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर एबिलिटीज ना, तो सामने वाला क्यों ट्रस्ट करेगा तुम पे जब तुम्हें खुद ही भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर. फिर कॉन्फिडेंस आने का एक और फायदा है कि आप अपने आप को इजीली एक्सप्रेस कर पाते हो. वो जब आपके दिमाग में एक प्रेशर होता है ना, इससे ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो यार मैं कैसा करूंगा ऐसा करते हो तो आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो. एंड अनटिल अनलेस यू कांट एक्सप्रेस योरसेल्फ, हाउ विल इट, लाइक सामने वाला आपको जानेगा एंड पहचानेगा एंड रिकमेंड करेगा. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट साइक टेस्ट. तो साइक में लाइक ये एसआरटी कितनी अटेम्प्ट की थी इस बार? सर एसआरटी मेरा कुछ 40 अराउंड हुआ होगा. 40. यस सर, एसआरटी मैंने पूरा तो नहीं कर पाया था. मतलब जैसे मेरा मुझे याद है मैसूर में जो मैंने दिया था, तो उसमें ऐसा था कि टाइम था कि ऐसे था, बट इस बार उन्होंने ऐसे पेपर दे दिया एंड वो थे एसआरटीज एंड जस्ट यू हैव टू राइट. सो टाइम नहीं था तो आपको नहीं पता चला कि यार कितना टाइम हो गया कितना नहीं है, क्योंकि 30 सेकंड अगर आपको मिलता था फटाक से कर देते, बट इसमें डायरेक्ट वो मिल गया था एंड देन यू हैव टू जस्ट राइट इट.
सो उसमें मेरे को पता नहीं था, टाइम बाउंड था नहीं, तो आई वाज जस्ट राइटिंग एट माय ओन पेस कि फटाफट मैं करने की कोशिश तो कर रहा था, बट आई कुडंट कंप्लीट ऑल। तो मैसूर में क्या स्क्रीन पे फ्लैश की गई थी एसआरटीज? यस सर। ओके, 30 सेकंड्स के लिए। हाँ हाँ ओके ओके, ठीक है। तो क्योंकि मैं गुवाहाटी गया था, गुवाहाटी में तो बुकलेट हमें दी थी, और लाइक मेजोरिटी ऑफ द एसएसबीज में आपको बुकलेट दी जाती है सर, वही एसआरटीज की। मतलब 2019 का है ऐसा मुझे याद है कि अब आई मे बी रॉन्ग, बट मेरे को जहां तक याद है, क्योंकि मेरे को वो वाला याद था, तो मैं वहां पे एसआरटी कुछ 50 अराउंड ऐसे कर दिया था, क्योंकि वो फ्लैश वाली थी, फटाफट लिख के ऐसे कर लेते हैं, बट यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो क्या पता है वो 30 सेकंड्स मिलते हैं ना, तो लाइक हाथ ज्यादा तेजी से आज चलता है। ज्यादा तेज समटाइम्स चलती अगर टाइम ज्यादा हो ना, पता नहीं चलता, तो धीरे धीरे लिखते हैं कि इसमें और ऐड कर देता हूँ, और ऐड कर देता हूँ। लाइक अगर आपको वैट वैट भी अगर टाइम्ड करके ना दिया जाए, तो प्रोबेबली आप 30 या 35 वैट से ज्यादा नहीं कर क्योंकि आप पाओगे। अच्छा करने की कोशिश करोगे आप वहां अच्छा पे। करने की कोशिश ठीक करते हैं, है। एग्जैक्टली सर। सो हम्म, टाइम्ड में आपका थोड़ा रियल निकल जाता है, और आप फटाफट भी करते हो कि हाँ भाई छूट रहा है यार, अब जल्दी करना है। ओके। तो इसी के साथ हमारा फिर साइक हो जाता है। फिर इंटरव्यू क्या उसी दिन हो गया था, पर्सनल इंटरव्यू? तो सर नेक्स्ट डे मेरा जीटीओ था, नेक्स्ट डे मेरा जीटीओ था। सो और उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। सो ठीक है, तो एक जीटीओ पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं पहले।